और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अली लारिजानी और सुलेमानी जो कि बसीज कमांडर थे, दोनों पर ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने दोनों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने लारिजानी और सुलेमानी, लारिजानी यानी ईरान के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, मतलब नंबर 2 इन कमांड खामेनेई के बाद, उस लारिजानी के मारे जाने की और बसीज कमांडर सुलेमानी के भी मारे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दोनों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस लारिजानी को अभी अभी आपने 13 मार्च को ईरान की सड़कों पर निकलते हुए देखा था, एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल नारे लगाते हुए और फिलिस्तीन की आजादी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के मारे जाने के लिए बोलते हुए, उस लारिजानी और सुलेमानी दोनों को ही मार गिराने में कामयाब हुए हैं। ये अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर ये बात सही निकलती है तो डीकैपिटेशन की जिस काम पर चल रहा था अमेरिका इजराइल, उसमें पूरी तरह से, इस बीच आपको बता दें, नेटो पर भी भड़क गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। दरअसल इसका बैकग्राउंड आप जान ही रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, ऐसे तमाम यूरोपियन देश, जापान, साउथ कोरिया, सबसे मदद मांगी थी। कुछ देशों ने तो खुलकर, जर्मनी जैसे देश ने इनकार कर दिया और साउथ कोरिया जैसे देश नानुकुर करने लगे, क्योंकि उनको भी जरूरत अमेरिका की पड़ती रहती है। चाइना ने भी सीधा इनकार कर दिया और अब नेटो देशों पर, खास तौर से जो यूरोप के देश हैं, उनके इनकार पर क्या कहा उन्होंने, लाइव ही बोल रहे हैं, सुनिए। But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. And many people, many of the greatest military scholars are saying for years that presidents should have taken out Iran because they wanted a nuclear weapon. They were, if we didn't do the attack, or if, I'll go a step further, if I didn't terminate the Iran nuclear deal given to us, one of the worst deals ever made by Barack Hussein Obama. Remember when they sent Boeing 757s over there, loaded with cash, hundreds of millions of dollars? You would have been very happy. This was a wonderful. They said hundreds of millions. People forget that. Does anybody remember? Right? You remember. Hundreds of millions of dollars in a Boeing 757. I think there are 2 of them. Loaded, they took the seats out and they put cash, and it was so much that there wasn't a bank in Virginia, Maryland, or DC that had any money left. They stripped them of all their money, put it into place, sent it to Iran almost as ransom. That's not going to happen with Trump. And nobody ever did anything about it. Nobody ever said anything about it. Can you imagine if I did that? So they've been a threat for a long time, but they've really been a threat if I didn't terminate Obama's horrible deal that he made, the Iran nuclear deal, you would have had a nuclear war 4 years ago. You would have had nuclear holocaust, and you would have had it again if we didn't bomb the site. So when somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat, we don't want those people, because, and there are some people, I guess I would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. And virtually every NATO nation, and this is the thing, if they told me it wasn't a threat, and therefore they don't want to help, but when they say it was a threat, and it was a major threat, every one of them, I think every one of them, I don't know if one that said they're not a threat, but when they say it was a threat, but we're not going to help, I think they're very foolish. You know, it's interesting. It's interesting because I could say this, that what's happening. तो नेटो देशों पर भड़क गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग ये मानते हैं, उन्होंने दरअसल इस युद्ध के पीछे अपना रुख भी रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हमला कर सकता था ईरान अगर हम ये युद्ध नहीं लड़ते तो, और उन्होंने कहा कि जो नेटो देश ईरान को न्यूक्लियर खतरा नहीं समझ रहे थे, वो न जाने कौन से भुलावे में थे। और फिर जब उन्होंने मदद की बात की तो उन्होंने कहा कि ये नेटो देश जो अब साथ नहीं आ रहे हैं, उनको लेकर भी उन्होंने सख्त टिप्पणी कर डाली। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, 2 बड़ी खबरें हैं। अभी वहां पर सुबह का वक्त हो रहा होगा और सुबह उठते ही वो ज़्यादातर मीडिया को संबोधित करते हैं। सुबह उठते उठते ये 2 बड़ी कामयाबियां जिस पर वो एड्रेस कर रहे थे।
और उन्होंने बताया है। तो देखिए, बड़ी खबर यही है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अली लारिजानी की। अली लारिजानी क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? अगर आप आज तक शुरू से देख रहे हैं तो आपको याद होगा, पहले दिन भी जब आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद ये सवाल हम लोग पूछ रहे थे कि बावजूद इसके, देखिए अली खामेनी की जो उम्र थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादातर उनका पूरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा काम, युद्ध को लेकर सारी रणनीति, अमेरिका इजराइल के खिलाफ क्या करना है, ये सारे कदम कौन तय करता था? लारिजानी। आंख बंद कर कर उस पर भरोसा करते थे अली लारिजानी पर, आयतुल्लाह अली खामेनी। और उनकी मौत के बाद यहां तक कि जो राष्ट्रपति पेजेश्कियान है वो भी लारिजानी की इजाजत के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते थे। ऐसे में एक वक्त ये भी आया जब अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं, पेजेश्कियान उनके राष्ट्रपति हैं, वो जरा नर्म तेवर अपना रहे थे युद्ध को लेकर, फिर फौरन ऐसे संकेत मिले कि लारिजानी सख्त रुख रखना चाहते हैं और उनका भी मिजाज फिर दोनों का पलट गया। तो कुल मिलाकर लारिजानी आयतुल्लाह अली खामेनी के नंबर 2 थे, वो उन पर पूरा भरोसा करते थे और उस हमले में लारिजानी बच गए थे और साथ में बच गए थे बसीज कमांडर सुलेमानी। लेकिन आज वाले इस अटैक में, क्योंकि 13 मार्च को, आपको वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, ये तस्वीर हटाइए, 13 मार्च की तस्वीर, और ये तो तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेतन्याहू के फॉर्मर जो स्पोक्स पर्सन थे, पूर्व प्रवक्ता थे, उन्होंने पहले ही डाला था और ये पोस्ट डालकर उन्होंने लाल घेरे में एक आदमी को पीछे मास्क में दिखाया था और कहा था कि हमारा जो इन्फॉर्मर है वो लारिजानी के साथ इस तस्वीर में है और लारिजानी ही वो अगला शख्स है जो अब मारा जाएगा। बात सच हुई है और आज आप देख रहे हैं कि युद्ध के 18वें दिन अली लारिजानी को मारने में इजराइल और अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिली है। ये फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्स और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यही दोनों मुख्य शख्सियत थे जिसकी वजह से माना जा रहा था कि विरोध में कोई भी सड़कों पर निकलेगा नहीं मौजूदा शासन के। और क्या इसके बाद अमेरिका और इजराइल, आम लोग जो इससे पहले विरोध में निकले थे शासन के, उनको सड़कों पर निकालने में कामयाब होंगे? बहरहाल इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन अमेरिका भी ऐसा करने के लिए तैयार है। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो अरब कंट्रीज हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म ना करे, वो इस बार इस युद्ध में ईरान की पूरी ताकत को ही खत्म कर दे।